أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. துவா கேட்கிறதுடைய ஒழுக்கம் சம்பந்தமாக நபி அவங்க சஹாபாக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. சில நேரம் சஹாபாக்களுடைய அந்த துவாவுடைய வார்த்தை பிரயோகத்தை கேட்டதுக்கு பின்னால சல்லல்லாஹு சொன்னாங்க, இப்படி நீங்க துவா கேட்க வேணாம், நீங்க எப்படி துவா கேளுங்க அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அப்போ ஒரு தடவை நபி ஸல்லல்லாஹு அவங்க செய்யறாங்க, ஒரு மனிதனுக்கு பக்கத்தால ஒரு சஹாபிக்கு பக்கத்தால நடந்து போறாங்க. அவர் துவா கேட்கிறாரு, அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக ஸப்ர், யாத நான் உனக்கிட்ட பொறுமையை கேட்கிறேன், அப்படின்னு துவா கேட்டதுக்கு பின்னால் நபி சொன்னாங்க, நீங்க அல்லாஹ் கிட்ட சோதனையை கேட்டிக்கிறீங்க. நீங்க உங்களுக்கு இன்னும் சோதனை ஒன்றும் வரல, வர முன்னால் நீங்க எப்படி துவா கேட்கிறீங்க? பொறுமையைத்தான் என்ன அர்த்தம்? எனக்கு நீ அத சோதனையைத்தான் அர்த்தம். எனவே நீங்கள் சோதனை வராமல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு துவா கேளுங்கள் அப்படின்னு நபிங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்ப இன்னைக்கு நாங்க பார்க்கணும் ஒரு விஷயம். அப்ப குர்ஆன்ல வந்து ரப்பனா அஃப்ரிக அலைனா ஸப்ரன், தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் துவா கேட்டாங்க, யா அல்லாஹ் எனக்கு பொறுமையை தருவாயாக. அப்ப ரெண்டுக்கும் முரணாகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. என்னென்றால், ஒரு சோதனை வந்ததுக்கு பின்னால பொறுமையை கேட்கிறது ஓகே. ஏன் அவங்க ஜிஹாது செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுச்சுது ஜாலுத்தோட. அப்ப எனவே 313 பேர், அங்கால எதிரிப்பட நிறைய பேர், சோதனை, பசி, தாகம். அந்த நேரத்துல யா அல்லாஹ் இந்த ஜிஹாத நாங்க சரியான முறைக்கு செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு பொறுமையை தருவாயாக, எங்களை பின்வாங்க வைக்காமல் எங்களுடைய பாதங்களை உறுதிப்படுத்துவாயான்னு துவா கேட்டாங்க. அது எப்ப? சோதனை வந்ததுக்கு பின்னால. இந்த சஹாபி எப்ப துவா கேட்கிறாரு? சோதனை இல்லாத டைம்ல தனக்கு பொறுமையைத்தான் கேட்கிறாரு. இதுதான் கூடாது. நீங்க எப்பவுமே சோதனை வராமைக்கு யா அல்லாஹ் என்ன சோதனையிலிருந்து பாதுகாத்துரு அப்படின்னு துவாக்களுங்க நபி சொல்லி கொடுத்தாங்க. இது ஒன்றா சப்ஜெக்ட். நபி ஸல்லல்லாஹு இன்னொரு சஹாபிக்கு பக்கத்துல நடந்து போனாங்க. அப்ப அவர் துவா கேட்டார், எப்படி? யா அல்லாஹ் எனக்கு உன்னுடைய அருட்கொடையை பூரணப்படுத்துவாயாக அப்படின்னு துவா கேட்டார். அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி கேட்டாங்க, ஏ மகனே, ஏ ஆதமுடைய மகனே, ஏ மனிதரே, உங்களுக்கு ஒரு அருட்கொடையின் பூர்த்தி என்னன்னு தெரியுமா? என்னன்னு அல்லாஹ் தந்த அருட்கொடையில பூர்த்தியானது எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்ப அவர் சொன்னாரு, யா ரசூலல்லாஹ், நான் ஒரு துவா ஒன்று கேட்டிருக்கிறேன், அதை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான்னு ஆதரவு வைக்கிறேன், அதைத்தான் நான் மிகப்பெரிய அருட்கொடை என்று கருதுகிறேன் அப்படின்னு அவர் நினைச்சு கொண்டாரு. நிறைய கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அது இல்ல நீங்க கேட்ட துவா, அது இல்ல அருட்கொடையில பூர்த்தியானது. துவா கேட்கிறதா நீங்க அப்படி சொல்லி துவா கேட்கிறதா இருந்தா நீங்க எப்படி துவா கேட்கணும்? அருட்கொடையில பூர்த்தியானது எனக்கு தருவாயாக என்று கேட்டா, யா அல்லாஹ் நான் சொர்க்கம் போகணும், நரகத்தை விட்டும் பாதுகாக்கணும். இதுதான் அருட்கொடையில மிகப்பெரிய அருட்கொடை. அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் குர்ஆன்ல, ஃபமன் ஸுஹ்ஸிஹ அனின் நாரி வ உத்கிலல் ஜன்னத ஃபகத் ஃபாஸ். அல்லாஹ் வெற்றின்னு அதிகமான இடத்துல பேசிக்கிறான். அந்த வெற்றியில மிகப்பெரிய வெற்றி எதுண்டா, அருட்கொடையில பூர்த்தியான அருட்கொடை எதுன்னு கேட்டா, நரகத்தை விட்டும் தூரமாக்கப்பட்டு எந்த மனிதன் சொர்க்கத்திற்குள் ஆரம்பமாக நுழைகிறானோ அவன் தான் வெற்றியாளன். அப்ப நீங்க நியமத்துல பூர்த்தியான எதுன்னு கேட்டா நீங்க என்ன கேட்கணும்? யாரெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு நுழை வைப்பாயாக, நரகத்தை விட்டும் என்ன பாதுகாப்பாயாக, அப்படி துவா கேளுங்க. இன்னொரு சஹாபி துவா கேட்டாரு. அவர் யாதல் ஜலாலி வல் இக்ராம் என்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணினார். என்ன வார்த்தை? யாதல் ஜலாலி வல் இக்ராம். இன்னொரு வார்த்தை ஒன்று இருக்குது, யா ஹய்யூ யா கய்யூம். ரெண்டு வார்த்தை, யாதல் ஜலாலி வல் இக்ராம். இன்னொரு வார்த்தை ஒன்று நாங்க துவா கேட்க போக்கல, தமிழ்ல இருந்தாலும் இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், பயன்படுத்தலாம். யா அர்ஹமர் ராஹிமீன், யா அர்ஹமர் ராஹிமீன், யா ஹய்யூ யா கய்யூம், யாதல் ஜலாலி வல் இக்ராம். இந்த மாதிரி ஒரு இந்த யாதல் ஜலாலி வல் இக்ராம் என்கிற வார்த்தையை சொல்லி அந்த மனிதர் சஹாபி துவா கேட்டார். நபி அவங்க சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், உங்களோட துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விட்டது, நீங்கள் துவா கேளுங்கள். ஏன்னா இது அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சிஃபத்துல உள்ளது. யா அல்லாஹ் நீ இந்த உலகத்தை அடக்கி ஆளக்கூடிய சக்தி உள்ள கண்ணியமானவன் என்ற ஒரு முக்கியமான கருத்தை உள்ளடக்கினது. நீதான் பவர்ஃபுல்லானவன் என்கிற அந்த அர்த்தம் உடையது. அப்ப இதெல்லாம் துவாவுடைய ஒழுக்கங்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. எனவே நாங்க துவா கேட்கிற நேரத்திலையும் இப்படி நாங்க என்ன செய்யறது, அழகான முறைக்கு அல்லாஹ்வை புகழ்றது. ஆரம்பத்திலேயே எங்கள் தேவையை கேட்காமைக்கு நம்மளோட பாவத்தை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டு, யா அல்லாஹ் நான் தெரியாம இப்படி நாங்க எந்த அளவுக்கு ஏழாமையை வெளிப்படுத்தி நாங்கள் துவா கேட்போம், அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யப்படும், என்னோட துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அல்லாஹ்வை புகழ்றது, அல்லாஹ்வுடைய சிஃபத்தை சொல்றது. யா அல்லாஹ் நீ பிரச்சனையை நீக்கக்கூடியவன், என்னுடைய பிரச்சனை நீக்குவாயாக, நீ பிள்ளையை தரக்கூடியவன், நீ பிள்ளையை தருவாயாக, அப்படியே அல்லாஹ்வோட சிஃபத்தை சொல்லி நாங்கள் என்ன செய்யணும், துவா கேட்க பழகிக்கொள்ளணும். आज हम देखा ये हदीस में
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबियों को किस तरह दुआ करना है, किस तरह दुआ करना है उसका आदाब सिखाया। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से जा रहा था। उस टाइम वो इस तरह दुआ मांगा, या अल्लाह मुझे सब्र दे दो, या अल्लाह मुझे सब्र दे दो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आप इस तरह नहीं पूछो अल्लाह से, आप बड़ा पूछा, आप खुद मशक्कत आपको देने के लिए अल्लाह से मांगा। उसका माना क्या है? आपको अभी तक कोई मुश्किल नहीं आया, आप अभी सवाल पूछ रहे हैं मुझे या अल्लाह सब्र दे दो, उसका मतलब क्या है? मुझे बला दे दो, मुझे मशक्कत दे दो, मैं उसके बाद सब्र करूँ। इस तरह नहीं पूछो, आप हर टाइम मुश्किलात से दूर होने के लिए दुआ मांगो। इस तरह नबी अकरम सिखाया। लेकिन कुरान में आया, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्र, या अल्लाह हमको सब्र दे दे। फिर दोनों में डिफरेंट नजर आ रहा है, दोनों में तजाद नजर आ रहा है, लेकिन तजाद नहीं है। जब दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ मांगा, ये मशक्कत होने के बाद, जिहाद वाजिब होने के बाद, ये भी कुछ बंदे थे 313 बंदा, जो दूसरा पार्टी है वो 1000 से ज्यादा। अब उस टाइम प्यास भी लगा है। उस टाइम या अल्लाह हमको सब्र दे दे। ये मशक्कत के बाद, मुसीबत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम सब्र मांगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर सिखा रहा है, आपको अभी तक कोई मुश्किल नहीं आया, आप सब्र नहीं पूछो, सब्र से मुश्किलात से दूर होने के लिए आपसे अल्लाह से पूछो। दूसरा बंदा, एक बंदा याद जलाली वाल इकराम का लफ्ज इस्तेमाल करके एक सहाबी दुआ मांगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, आपका दुआ कबूल हो गया, आप जब आपको क्या चाहिए अल्लाह से पूछो। इसका मतलब क्या है? अल्लाह का कुछ सिफात है, कुछ नाम है, या जलाली वाल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या हय्यू या कय्यूम, इस तरह कुछ सिफात है अल्लाह का। अगर हम ये लफ्ज बोलने के बाद अगर हम दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा। और इसी तरह हम आज देखा मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा देखा। पढ़ दिया अब हम देखा मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश का किस्सा आज देखा। अल्लाह इसमें प्रेग्नेंट वुमन के साथ किस तरह मुआमला करना है, उनको ये प्रेग्नेंट वुमन को वो किस तरह उसके पीरियड में किस तरह मुआमला करना है, जिंदगी गुजारना है, ये अल्लाह ने सिखाया कुरान में। कुरान सिर्फ तारीख का किताब नहीं, हर चीज में हमको इरशाद दे दिया कुरान। अल्लाह ने क्या बताया, जब मरियम अलैहिस्सलाम को दुख आ गया, प्रेग्नेंट का नहीं, इसका दर्द शुरू हो गया। अभी जब पैदा होता है ये बेटा किसी मर्द के बगैर, अल्लाह ने उसका कुदरत को दिखाने के लिए अल्लाह ने इस तरह रखा है, ये कानून, एक सिस्टम। ये देखकर उसके बाद जो वो फेस होने वाला जो तहद्दियात, उसको याद करते हुए बताया, मैं इससे पहले मर चुका होता, इस तरह उसका दुख इजहार किया। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज दे दिया, ला तहज़नी, ये मरियम अलैहिस्सलाम आप दुख न हो जाए, हमारा मदद आपके साथ है, हम आपको मदद करेंगे। उसके बाद अल्लाह ने बताया, आप उठकर ये खजूर का दरख्त को थोड़ा खींचो, फिर आप उससे कुछ खजूर आपके मिल जाएगा। लेकिन जब वो बैतुल मक़दिस में था, अल्लाह ने किसी मशक्कत के, किसी कोशिश के बगैर फल दिया। इधर हम देखेंगे मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस तरह ऑर्डर दिया, आप उठकर ये खजूर का दरख्त को थोड़ा खींचो। क्यों? ये प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा काम करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमन। जो अल्लाह उस बैतुल मक़दिस में किस तरह किसी कोशिश के बगैर फल दे सकता था, इधर भी दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने इस तरह नहीं किया, कुछ कोशिश करने के लिए बताया। उसके बाद अल्लाह ने बताया, आप अच्छी तरह खाओ, अच्छी तरह पियो, आपका दिल में जो दुख है उसको दूर होकर आप रहो। ये प्रेग्नेंट टाइम में किसी वुमन
अच्छी तरह पीना चाहिए कि अच्छी तरह उसको जो कुछ जो मांगेगी वो हम उसको देना है, हम उसको देना है। और उसका माइनॉरिटी एंड फिजिकलिटी दोनों में हम मशक्कत नहीं देना है। उनको दुख होने वाली चीज नहीं बताना है, किसी चीज में उसका दिल नहीं टूटना है। अगर एक वुमन इस प्रेगनेंसी के टाइम में अगर वफात हो जाए, ये जिहाद के बराबर है। जिहाद में दो चीज है, तीसरा चीज नहीं है। अगर जिहाद में चला गया उसका जान चला जाएगा, वो शहीद में शुमार होगा। अगर अच्छी तरह पैदाइश हो गई, बेटा बेटी हो गई, फिर सलामत से आ जाएगा। इसी तरह जिहाद में भी इसी तरह है, उधर जाकर जान चला जाएगा, वरना हमको नुसरत मिल जाएगा, हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। क्यों ने उसमें इतना दर्द होता है, प्रेगनेंसी वुमन के टाइम में कितना दर्द होता है, उसका दर्द होता है। हमारे जुबान में उसका एक मिसाल है, यानी हर दर्द को वैसे वैसे दर्द दर्द पेन पेन का लफ्ज आएगा, लेकिन हार्ट अटैक, एक बंदे को सर का दर्द होगा उसका लफ्ज अलग है। पेट का दर्द यानी उर्दू में तो सबको दर्द होगा, लेकिन हमारे जुबान में दूसरा दर्द के लिए अलग नाम है, पेन। लेकिन सर में दर्द, वो जो कान का दर्द और पेट का दर्द, उसके लिए लफ्ज अलग है। क्यों? उसका लफ्ज, ये जो बीमार है उसका दर्द बहुत पावरफुल है, इसलिए उसका नाम पेन से हटकर और ज्यादा रख लिया। इसी तरह जो बच्चा पैदा होने के लफ्ज भी ये पेन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो पावरफुल वाला। इसलिए हमारे वालिदा के साथ, हमारा वालिद के साथ हम अच्छी तरह मुआमला करना है। हर नबी नूह अलैहिस्सलाम रब्बि ग़फिरली वली वालिदैया दुआ मांगा, या अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए, और इसी तरह मेरे वालिदैन को भी या अल्लाह माफ़ फरमाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दुआ मांगा, रब्बि ग़फिरली वली वालिदैया, इस तरह दुआ मांगा। और लुकमान अलैहिस्सलाम भी दुआ मांगा, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया। इस तरह बहुत अनबिया अपने के साथ हमारे वालिदैन को भी, उनके वालिदैन को भी दुआ मांगा। इसी तरह हम भी हमारे दुआओं में हमारे वालिदैन को याद रखना है, और उनको भी जो खिदमत करना है उनको खिदमत करना है। और इसी तरह उनको जो खर्चा आएगा और बुढ़ापे में उनको भी थोड़ा हम मदद करना है, ये हमारे ऊपर वाजिब है। इसलिए हम ये सारे ख्याल करते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमारे वालिदा और हमारे बीवी उनके साथ अच्छी तरह मुआमला करने के लिए हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।